morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. ऐसे ही पकड़ती है ना तुझे नन्या दीदी को Preet Narania, unmute yourself. Yes, ma'am. Prabnoor, already unmute. Gurveen, unmute yourself. We will wait only for 5 minutes because I want to teach science also today. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, okay. Only for 2 minutes more. Okay. Those who are unmute, shall I start? Preet Narania, you are unmute. Preet Narania, unmute Yes, yourself. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Gracie, today you will also unmute yourself. Okay, ma'am. Prabnoor, unmute yourself. Okay. Now, all of you join your hands. Close your eyes. And be ready for the prayer. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Good morning, girls. Good morning, ma'am. Okay. Now, all of you open lesson number 13 of GK. It means last page. Only Okay, one ma'am. page is left now. Puneet Pal, you also unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, but I don't want to listen any voice from your side. Okay, those who are unmute, please. I don't want to listen any voice from your side. Okay. Okay, ma'am. Huh. Okay, ma'am. Wait a minute. Gunjan Riya, unnecessary. You are always
raise up your hand. If I see anybody unnecessary, raise up your hand. Please leave the class today. See these pictures. Wait a minute. What are these pictures? Have you seen these images? Bolo. Those who are unmute. कोई बच्चा unmute नहीं है? Nobody is unmute today. What's the problem? Puneet Palkor, I told you to unmute yourself. Puneet Pal. Yes. Preet Narania. Preet Narania, you left the class. Preet Narania. Preet Narania, unmute yourself. Yes, ma'am. Why you up? Nishtha Sharma, unmute yourself. Okay. Yes, ma'am. Now, girls, have you seen these images? Yes, ma'am. What are these images about? Ma'am, these are storms. Storms. These are natural disaster. Natural means होता है जो अपने आप आता है. Anybody tell me what is the meaning of disaster? Anybody tell me what is the meaning of disaster? किसी को पता है what is the meaning of disaster? मैम कुदरती आपदा. हाँ, कुदरती आपदा तो होती है, but हाँ, very good. Yes, Aradhya Bakshi, tell me what is the meaning of disaster? मैम तूफान. हाँ, मैम बहुत बड़े तूफान जो होते हैं. हाँ, मुसीबत अचानक आ जाए, that is called the disaster. Very good. हाँ, very good. Now, girls, open page, last page number. These are the open. Okay, Yes, okay, ma'am. okay. Now see, a warm up. A sudden catastrophic event that causes great damage to life and property is known as a disaster. Disaster वो event होता है जिससे हमारी लाइफ को या हमारी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है. मुसीबत जब हमारे ऊपर आती है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना फ्लड आ गया, बोलते हैं ना फ्लड मीन्स बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया. कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक से घर टूट जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा, कुछ लोग मर भी जाते हैं. सो all these are called the disaster. ठीक है, all these are called the disaster. So what type of disaster? In first picture, Ma'am, it in is this picture, the Yes, yes. tornado. हाँ, Ma'am, tsunami. सुनामी नहीं है. सुनामी होता है जो पानी से अचानक बहुत ज्यादा पानी एकदम आ जाए ना, and we will not control, that is called the tsunami. सुनामी में पानी पानी आता है. ओके, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैं भी आपको इमेज शेयर कर रही हूँ. दिस इज द सुनामी वेव्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज द टॉर्नेडो. TOR NADO, tornado. Done. Now what is the second picture जिसमें this land is dry? No, that is not earthquake.
Ma'am, dot. Dot. Drop. No, it is, we will pronounce druff. Druff means सूखा पड़ जाना, जब बारिश नहीं ना होती है लगातार। अब जो फार्मर्स होते हैं इनको भी अपने खेतों के लिए पानी की जरूरत होती है, तो जब क्या होता है बहुत टाइम के लिए बारिश नहीं होती, when to rain is not there, less water is there, that time drought, सूखा पड़ जाना। DROUGHT, DROUGHT, drought. Done. Done, ma'am. And what is the third one? Houses are broken. Ma'am, earthquake. हाँ, अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उससे क्या होता है, घर हमारे हिलने लग जाते हैं, और जो अच्छे पक्के मतलब कि परमानेंट हाउस नहीं होते हैं वो अर्थक्वेक से टूट जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। EARTH, earthquake. QUAKE, earthquake. Done. Yes, ma'am. Everybody done? Okay. Next, हाँ, next one is, which pictures are these? जो आपको मैं दिखा रही हूँ, which one? Tsunami. These are the tsunami waves. So T is silent. Okay. T is silent. TSUNAMI. Tsunami. And the last one is? Forest fire. हाँ, कभी कभी जंगलों में अचानक ही आग लग जाती है और इससे क्या होते हैं, जंगल जल जाते हैं। So these are called forest fires. हाँ, these are called forest fire. Okay. Okay, ma'am. वो क्या पड़ा ऊपर? अरे हाँ, done. Yes, ma'am. Okay. Now, any chapter is left in GK? Let me know now today only. Now your GK chapter syllabus is finished. Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, girls, अब आप लोग निकालो पेज नंबर 258 of science, human body. Ma'am, open. Open. Yes, ma'am. What is the name of the chapter? Human body. What is the name of the chapter? Human body. Human body. And what is the lesson number? 6. Okay. Now, girls, observe this picture. Which picture is this? Heart. Heart. And where it is? Where this heart is? Heart. Ma'am, chest. Ma'am, chest. Second picture. Ma'am, Next. No, next picture. This one. stomach. 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 Write down. What is the spelling of stomach? STOMACH. Very good. STOMACH. Stomach. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not coming. Abhi aayegi, girls. Now, which picture is this? Kidney. Ma'am, kidney. What is the shape of the kidney? Ma'am, like seed. Bean shaped. Okay. So write down KID
Yes, ma'am. Yes, KIDNEYS, kidneys. Now, which picture is this? Brain. ब्रेन. ओके, नाउ ये जो ब्रेन है यही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है, ऑल द फंक्शंस जो करता है वो ब्रेन, हमारा दिमाग ही करता है. अगर आपका दिमाग नहीं होगा, क्या आप सोच सकते हो? No, Will you ma'am. think? No, ma'am. हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा काम करना है. सो ये हमारा ब्रेन ही है, हमारा दिमाग ही है, which tell us what to do and at what time. So write down BRAIN. brain. Ma'am, written. Ma'am, Written. Okay. Last picture. Ma'am, lungs. Ma'am, lungs. हाँ, these are lungs. 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 Ma'am, written. Written up chapter को समझो अच्छे से, ठीक है? Now we know about the word called machine. Machine पता है ना? What is machine? Machine वो होती है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते. Our fan, our mobile, our scooter, they all work with a machine. So our body is also a kind of machine. हमारी जो body है वो भी एक machine की तरह है. But it is different from all other machine because in other machine we first give the instructions and then the process start. But in some process our body work itself, like in heart beating and opening of our eyelids. Eyelids पता है ना what is eyelid? Yes, ma'am. ठीक है. अब जैसे हर मशीन को हमें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, ठीक है, कब कौन सा काम करना है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देना पड़ता. लाइक आवर हार्ट. हमारा जो हार्ट है वो हमेशा धड़कता रहता है. अगर हमारा हार्ट ही नहीं होगा, व्हाट हैपन देन? व्हाट हैपन इफ वी डोंट हैव द हार्ट और इफ आवर हार्ट इज नॉट बीटिंग? हम मर सकते हैं. Yes, we all will die. So Die. human body is made up of cells and they are called the building blocks of life. जो हमारी बॉडी है ये छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ठीक है. हमारी बॉडी जो है ये छोटे छोटे सेल से बनी हुई है and these cells are called the building blocks of life. सेल्स जॉइन टुगेदर. और जब हम इन सारे सेल्स को, छोटे छोटे सेल्स को जोड़ देते हैं, दे बिकम द टिश्यू. वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू. दे बिकम द टिश्यू. टिश्यू जॉइन टू फॉर्म ऑर्गन. और जब ये सेल्स और टिश्यू ये सारे कुछ इकट्ठे होके जुड़ जाते हैं, फिर ये हमारे बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं. Understood? When the organ works together, they form an organ system. और जब ये सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब ये ऑर्गन्स काम करते हैं, तब ये जाके बन जाते हैं ऑर्गन सिस्टम. प्लीज किसी के घर से आवाज आ रही है? Understood? So human body is made up of cells. No, cells. Human body is made up of cells. And what are these cells called? These cells are called Building blocks. Building blocks of life. building blocks of life. And what happens when cells join together? What they form? Tissue. Okay. And when tissue joined, what they form? Organ. Organ. And when all the organs work together, then what happen? Organ system. They form organ system. So how many sense organs we have? We have five sense organs.
5 sense organs. Will you tell me 5 sense organs? ma'am. Eyes, nose, ears, tongue, skin. Yes. Eyes, nose, ears, tongue, and skin. They are the main sense organ. Every sense organ has its particular function. अब हर sense organ का अपना एक function होता है. अब मुझे ये बताओ, क्या हम अपनी eyes के साथ खाना खा सकते हैं? No, ma'am. No. So what we will do with our eyes? We use our eyes with our eyes. We see with our eyes. So eyes का function क्या है? खाली देखना. eyes से ना तो हम काम कर सकते. ओके, इसीलिए बताया है कि हर सेंस ऑर्गन्स का अपना एक काम होता है. अगर आई का काम देखना है तो आईज ओनली देखेगी. आईज विल नॉट टेस्ट द थिंग, आईज विल नॉट स्मेल द थिंग, आईज विल नॉट hear. So with which sense organs we will hear the different types of sounds? Ears. Okay. With which sense organ we will smell all the things? Nose. Okay. Nose. And with which sense organ tells us that this food is tasty or not? We use the tongue to taste. Tongue. Okay, tongue. So what is the spelling of tongue? Tongue. Ha, Tongue. Tongue. And the function of the tongue is to taste. We use our skin to sense, feel like pain, heat, pressure, and touch. Our sense organs are connected to the brains. अब ये जो जितनी हमारी sense organs है, eyes, nose, ears, tongue और skin, ये किसके साथ connect है? Brain के साथ. ये किसके साथ जुड़ी हुई है? ब्रेन के साथ. लेकिन ब्रेन के साथ ये किसके थ्रू जुड़ी हुई है? नर्व्स. नर्व्स होती है छोटी छोटी पाइप्स. छोटी छोटी जो पाइप्स होती है उसके थ्रू हमारी ये सेंस ऑर्गन्स ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है. When our sense organs sense something, जब हमारी सेंस ऑर्गन्स कुछ भी काम करती है, then our nerves send the message to the brain. For example, अगर हमने अपने नोज से स्मेल करनी है, ठीक है, तो हमारी जो नोज का सेंस, जो सेंस ऑर्गन है, ये ब्रेन को बताएगा कि अब हमने किसी भी चीज को स्मेल करी है. So when our sense organ sends something, then our nerve send message to the brain. तो जब ये जो नर्व होती है, जैसे हमने नोज के साथ स्मेल किया, तो नोज की जो नर्व ब्रेन के साथ कनेक्ट है, ये उसको जाके बताएगा ब्रेन को कि हमने नोज के साथ स्मेल किया है. Our brain is responsible to understand pictures. अब हमारा दिमाग ही है, हमारा ब्रेन ही है जो बताता है कि ये पिक्चर है, ये टेस्ट है, ये स्मेल है और ये फीलिंग्स है. अगर हमारा ब्रेन ही नहीं होगा, if we don't have brain, then you tell me whether you will do all the activities like see, hear, smell, taste, pain, No, heat, ma'am. pressure. No, ma'am. No. So all the sense organ connected to the Brain. brain. And Brain. okay, brain. But with which? Nerves. Through the nerves. No. Okay. When our sense organ sends something, then our nerve send message to the Brain. brain. वो ब्रेन को मैसेज बताता है नर्व्स. अवर who is responsible to understand pictures, taste, smells and feeling? Brain. समझ? हाँ, brain. इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. Anybody is having problem? No, ma'am. Okay, girls, No, जब भी ma'am. आपको प्रॉब्लम आए, you just मुझे समझ नहीं आया. Okay, now next is organ system. Okay, organ system.
स्पेसिफिक दिव्यांशी गुप्ता, स्पेसिफिक ऑर्गन मीन्स कुछ ऑर्गन्स, ओके। अभी मैं आपको बता रही हूँ, वेट अ मिनट, बट गर्ल्स अननेसेसरी डोंट रेज अप योर हैंड, इट विल डिस्टर्ब मी ऑल द टाइम, ओके। नाउ स्पेसिफिक ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। कुछ ही ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं जिससे ऑर्गन सिस्टम बनता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी। ईच ऑर्गन सिस्टम हैज इट्स ओन फंक्शन। अब हर ऑर्गन सिस्टम की अपना एक फंक्शन होता है। अगर आईज का काम देखना है तो आईज से हम खाली देख ही सकते हैं। वी विल नॉट डू वर्क विद द आईज, वी कैन ओनली सी विद अवर आईज। इफ द फंक्शन ऑफ द नोज इज टू स्मेल, then we can smell with our nose only, we can't smell with our tongue. So every specific organs together मतलब एक साथ जुड़ के, specific organs together form an organ system to perform a specific organ activity. Each organ system has its own function. अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो पिक्चर मैंने शेयर की है? Yes, ma'am. Which Yes, picture ma'am. is this? This is the picture of the respiratory system. Which picture is this? This is the respiratory system. अब मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कैसे हम लोग हवा को अंदर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर Yes, है ma'am. नोज, ठीक है, ऊपर है नोज, देन विंड पाइप, देन टू लंग्स। पेट नहीं, लंग्स, ओके। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। यही जो तीन चीजें हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आते हैं। अब ध्यान से सुनना that what is the function of this respiratory system. Our respiratory system consists of three main parts. अब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में थ्री मेन पार्ट्स होते हैं विच आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। सो हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? Three. Will you tell me the names of three parts of respiratory system? Wind pipe and lungs. हाँ, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। अब देखो हम लोग कैसे सांस लेते हैं। वी इनटेक, इनटेक मीन्स लेना, ओके। वी इनटेक द एयर थ्रू आवर नोज। सबसे पहले हम हवा को अपने नोज से अंदर लेके जाते हैं। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, आप अपने नोज पे हैंड्स रखो। सब बच्चे अपने नोज को अच्छे से बंद कर लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या आप सांस ले पा रहे हो? No, ma'am. नो, व्हाई? क्यों नहीं ले पा रहे हो? हाँ, क्योंकि आपने अपने नोज को बंद कर दिया है। अब आपको क्या हो रहा है कि आपके नोज के अंदर हवा नहीं जा रही है। गर्ल्स प्लीज ऑन द वीडियोस, ओके। तो आपके नोज के अंदर हवा नहीं जा रही, जिससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग सांस नहीं ले पा रहे हो ना। हैंड डाउन गर्ल्स, हैंड्स डाउन। हाँ, सो our respiratory system consists of three main parts which are nose, windpipe and lungs. We intake the air through our nose. हम अपने नोज से हवा लेते हैं। This air is oxygen. अब ये एयर जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो है क्या? That is called the oxygen. ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, if we will not take oxygen, we all will die. So अब इसके बाद क्या होता है? जब हम अपने नोज से हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, the air then passes through the windpipe. उसके बाद जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारी विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप मतलब हवा वाली जो पाइप है, ठीक है। जो ऑक्सीजन वाली पाइप है वो उसमें जाती है एंड रीचेस टू आवर लंग्स। और उसके बाद वो लंग्स में जो हमारे 2 लंग्स है
उन दोनों में वो चली जाती है। द फंक्शन ऑफ द लंग्स, अब फंक्शन क्या है, लंग्स का क्या काम है, इज टू टेक ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन हम अपने नोज से ले रहे हैं एंड सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स का फंक्शन क्या है कि हमने अपने नोज से जो ऑक्सीजन ली है पहले उसको विंड पाइप में डाल के जब वो लंग्स में आए तो लंग्स का काम है उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड एंड गिव अस एनर्जी। अब जब ये ऑक्सीजन हमारे फूड में पहुंचती है, जो हमने खाना खाया होता है, जो फूड में पहुंचती है उसको बर्न करती है और उसके बाद वो हमें ताकत देते हैं। दे गिव अस द एनर्जी। इसीलिए why we will eat the food, we will eat the food because food give us the energy। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स, द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू टेक ऑक्सीजन, पहले वो ऑक्सीजन लेते हैं, सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर उस ऑक्सीजन को वो डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करते हैं यानी देते हैं, एंड व्हेन ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न करते हैं एंड गिव अस द एनर्जी। द एयर, हाँ, और उसके बाद जब हमने जो ऑक्सीजन ली, हम लोग सांस लेते हैं एंड छोड़ते हैं ना, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, हम लोग करते हैं ना, हाँ, तो जो सांस हमने छोड़ी, द ऑक्सीजन जो हमने ली एंड देन द एयर वी ब्रीद आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से बाहर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्पफुल टू प्लांट। अब ये जो हमने हवा छोड़ी, जो एयर छोड़ी, वो किसने ली, कार्बन डाइऑक्साइड किसने ली, प्लांट्स ने। हाँ, प्लांट्स ने, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है कि प्लांट्स ने जो फूड को प्रिपेयर करना होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने मुंह से और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे और प्लांट्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं। फॉर करेक्ट ब्रीदिंग, अगर हमने करेक्ट सांस लेनी है, वी शुड ब्रीद इन अ प्योर एनवायरनमेंट। ओके, प्योर एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पे कोई धुआं ना हो और जहाँ की हवा बिल्कुल साफ हो। द बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम। ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हमें हमेशा सांस नाक से, नोज से लेनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द माउथ। अपने मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, और अपने सराउंडिंग को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सबको समझ आया? यस मैम। कोई बच्चा मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में समझा सकता है? नो प्रॉब्लम वेदर योर इंग्लिश इज रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बट इज देयर एनीबडी who explain me this respiratory system? Raise up your hand. Okay, yeah. Oshin, you are unmute. Yes, Oshin, tell me respiratory system. Excuse me मैम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, नोज, विंड पाइप और लंग्स। जो नोज होता है वो ऑक्सीजन लेके लंग्स तक पहुंचाता है। पहले लंग्स को नहीं पहुंचाता है, पहले किसको पहुंचाता है? विंड पाइप। हाँ, विंड पाइप, एंड देन आफ्टर विंड पाइप देन इट रीचेस टू आवर lungs, then फिर उसके बाद टेल मी वेरी गुड। होता है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और हमारे स्टमक के अंदर जो हमने खाना खाया होता है उसको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड।
बर्न करके हमें एनर्जी देता है, ठीक है। वेरी गुड, एनीबडी इज देयर? ओके, दिव्यांशी गुप्ता, टेल मी। हाँ, मैम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नोज, जब हम नोज से सांस लेते हैं तो वो पहले फिर विंड पाइप पे जाता है, फिर वो लंग्स पे जाता है, फिर हम एयर लेते हैं तो वो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पासेस होता है विंड पाइप में, तो फिर वो लंग्स पे पहुंचता है। जो हमारा फंक्शन होता है लंग्स का, वो ऑक्सीजन लेना होता है और दूसरे पार्ट्स में सप्लाई करता है। वेरी गुड, जब हमारी ऑक्सीजन हमारे स्टमक पे जाती है तो वो हमें हमारे फूड को बर्न करके हमें एनर्जी देती है। वेरी गुड, फिर जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स निकलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे वो बनता है फोटोसिंथेसिस। हमें सही ब्रीथ लेने के लिए अपने इन्वायरमेंट पे लेनी चाहिए, और हमें हमेशा ब्रीथ नोज से लेनी चाहिए, कभी माउथ से नहीं लेनी चाहिए, और हमें अपनी इन्वायरमेंट क्लीन रखनी चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स ओके गर्ल्स, no problem. Now lower your hand, all of you lower your hand. Okay, now girls, it means you understood. If you understood, show me your thumb Yes, or raise ma'am. up your hand. Ma'am, सबको we समझ आया? understood. Yes, Understood? ma'am. We understood. Yes, Okay, ma'am. okay. Okay, girls, now listen carefully. Now 5 minutes are left. Tomorrow you are having 2 classes. Okay? अभी भी कुछ बच्चे जो क्लास में नहीं आ रहे, मैंने उनको हाफ ईयरली एग्जाम नहीं देने देना है। वो लोग चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, दैट आई नो, बिकॉज दे विल नॉट अटेंड द क्लास, बट आई डोंट नो हाउ दे कंप्लीट दिस वन, डू द टेस्ट. Okay, so tomorrow you are having 2 class. One is SST at 10:30 and then 12 o'clock you are having abacus scale. Girls, 25th को आपका abacus का एग्जाम होना है। जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, सेम वे गूगल में होगा। आपने जो सेकेंड क्लास में बिग स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेपर कब होना है? 25th को। अभी एक यूनिट टेस्ट होगा 25th को और उसके बाद हाफ ईयरली होगा सितंबर में, और सब बच्चों ने ये अबेकस का एग्जाम देना है, ठीक है। मैं आपको टेस्ट होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास? मैम जैसे आज होती है टेस्ट के बाद कोई क्लास जैसे होती है। हाँ, वो 2 o'clock है। अबेकस का पेपर जो है वो 2। आराध्या आप सो रहे हो, लेटे हो, सिट प्रॉपरली आराध्या। यस, हाँ, तो आपने क्या करना है, आपका एग्जाम 2 o'clock होगा 25th को, सब बच्चों ने देना है। गर्ल्स, टुडे और टुमारो आई विल सेंड यू फिल इन द ब्लैंक पेजेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कुछ पेजेस आपने आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड में वो फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, ठीक है। और कल सब बच्चे अबेकस की क्लास अटेंड करना, क्योंकि कल मैं +6 का फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, ठीक है। उसमें मैम